And now it's time when I invite the student leaders, those who are going to put their views on this very, very important topic, triple talaq, the drama and discontents. First, I would like to invite Ms. Rudrali Patil, a student of law and social worker from Latur, Maharashtra. Please welcome, these are the student leaders just like you. Good morning to one and all present here. At the very outset of this discussion, I would like to take this opportunity to thank and congratulate Shri Vishwanath Karatji and Shri Rahul Karatji for their exemplary vision for giving us this platform where people of divergent views, diverse backgrounds can come and discuss their ideas and opinions. Thank you and congratulations, sir. Moving on to the matter of triple talaq. Discussing triple talaq means having an understanding of various aspects, the theological aspects, the feministic aspect, the legal aspect. And with a diverse panel such as today, I am sure that all these aspects will be covered. And as I am a student of law, I think it's only fair that I deal with the legal perspective of this matter. Now, if you ask me, in my opinion, whether the judgment given by the Supreme Court on the 22nd August 2017, if it was historic, absolutely historic. Was the bill that was passed in Lok Sabha, was that historic? Perhaps not so much. And I will explain to you why. When I read the bill for the very first time, I had many thoughts. And the first was that this bill is not about Muslim women at all. This is not about protecting Muslim women. This is about patriarchy. This is about the society that has enforced patriarchy. It's patriarchal men of one community against the patriarchal men of another community. It's a fight, it's a power struggle between a he and a he. And there is no she in this. There is no consideration for women. Therefore, this bill is not prudent in my personal opinion. There are many loopholes in it, like there is no example for maintenance. There is no proper guidelines given for maintenance. Now, after the judgment given by the Supreme Court, the words talaq, talaq, talaq become irrelevant. They don't exist. It's like saying kabaddi, 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 because it makes no sense. These are three random words. So now you're going to put a man in jail for saying these three words that have absolutely no relevance whatsoever, and you put him, and that's a criminal provision. And under Islam, marriage is a civil contract, and you're imposing a criminal penalty over it, and that again does not make any sense to me. There's one more thing that has actually caught my attention, and that is, who is going to register the complaint when there is triple talaq, right? It should either be the wife or the family or whatsoever. But under this bill, anyone, any passerby, any neighbor, anyone can be registering complaint, and this can be misused. This can be a strong tool that can be misused in the society, which is not a very good thing. Now, one personal issue that I have is that none of the stakeholders in this fight were consulted while making this bill. This bill was drafted in an absolute hurry. And there was no hurry, because once the Supreme Court has said something is unconstitutional, you needn't enact a bill in such a hurry. We can do it with proper discussion, debate, deliberation with all the stakeholders. And I am sure today that all this discussion is going to be so fruitful, and all the resolutions we pass, and if we send it to the government, government is not going to, is going to take notice of what we have said, because youth ki आवाज को नजरअंदाज करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है मेरे दोस्त. There is paucity of time, therefore I cannot elaborate more on the bill, but I think it's only on matters of policy considerations that the bill is being opposed in Rajya Sabha and not on politics. Therefore, I would like to take this opportunity. It wouldn't be fair if I don't congratulate Shaira Banuji for her absolutely brilliant victory that she has had, not just for herself, but for Muslim women in India and for the feminist movement across the world. Thank you, ma'am. You're an inspiration, truly. I would like to leave this gathering with a few lines that I have read about the anguish of Muslim women during triple talaq, and they go such as this. तलाक तो दे रहे हो इताब व कहर के साथ, तलाक तो दे रहे हो इताब व कहर के साथ, मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे मेहर के साथ. Thank you so much. Thank you very much, Rudrali. Thank you very much for your views, and I now request Rahul Karat to kindly felicitate and congratulate Rudrali Patil. Thank you very much for your views. Next, I would like to invite the student leader who comes all the way from Madhya Pradesh, Ms. Tanvi Bhasin, to put her views.
Good morning to the respected dignitaries and the youth of my nation, the youth who believes in fighting for the just cause. So, this topic reminded me of Nazim's story. She told me how her life shattered a few years back. Even today, she feels something is being continuously hammered in her head. And you know, what is it? Talaq, talaq, talaq. A single word repeated thrice destroyed Nazim's and her innocent daughter's future forever. And then there is Meerat, who got talaq through SMS, Hadia through Skype, and Sahiba in telephone by her drunken husband. Isn't this ironical that in so-called progressive society, women still are let down by various practices of different castes, classes, and religions? And triple talaq is one among them. So now you will ask how it turned into a drama. Supreme Court's judgment angered many people. Or should I say those who still wants women to walk and talk as per the desires of men? They yelled. They yelled at how their constitutional freedom of religion could be curbed. Then, I would like to ask the same people, have you forgotten that equality and justice are also our own constitutional values? Why they don't shout? Why they don't shout when many like Nazims are treated as mere puppets in the hands of men? Why they don't shout when their sacred religious principle transcends our morality? And if they proclaim to uphold its validity on the name of Quran, then I doubt. I doubt whether Allah or Ram or Jesus will accept such men's domination on the name of religion. Then, the next question is asked, is the discontent over? I would say, it should not. Yes, it should not, because Supreme Court and legislature are not going to end this battle alone. The real challenge is to fight the patriarchal mindset, where it is said to control women, silence their voice. So, on this 8th Bharatiya Chhatra Sansad, let's take a pledge to not only talk about women empowerment, rather seek it. And I can see a social revolution has started when Nazim says, रोई बहुत उसके दरवाजे पर दस्तक देकर, रोई बहुत उसके दरवाजे पर दस्तक देकर, पर अब ना ऐसा वक्त लौट कर आएगा. अब से ना मेरे जज्बात बिकेंगे और ना ही तू उसे खरीद पाएगा. Friends, the end of triple talaq is a movement for the equality and dignity of women, not just for Muslim women. And thus, it empowers more Nazims, Hadias, Gurmeets, Elinas and Tanvis to fight for their rights. Thank you. Thank you very much, Tanvi, for your views. And heartiest congratulations for putting your views in a very, very clear way. Thank you. Next, I would like to invite Mr. Pulkit Chungu, who comes all the way from Jammu and Kashmir to put his views. Please welcome with a big round of applause, Mr. Pulkit Chungu from J&K. स्वतंत्र वीर सावरकर एवं लोकमान्य तिलक जैसे महापुरुषों की जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रांत के आध्यात्मिक शहर पुणे में आयोजित भारतीय छात्र सांसद में भाग ले रहे तमाम मंचासीन अतिथिगण एवं मेरे सामने बैठे युवा भारत के युवा साथियों, मैं आप सबका तहे दिल से अभिवादन करता हूं. साथियों, 70 सालों से हमारे देश की जनसंख्या का एक हिस्सा जुल्म सहता आ रहा था और हम सब खामोश थे. 70 सालों से हमारी देश की जनसंख्या का एक हिस्सा अपने मूल अधिकारों से वंचित रह रहा था और हम सब खामोश थे. 70 सालों से हमारी देश की जनसंख्या का एक हिस्सा जिल्लत की जिंदगी जी रहा था, उसे अपनी बात कहने का अधिकार नहीं था, जंजीरों में जकड़ा हुआ था, धर्म और समाज के ठेकेदारों के जुल्म तले कुचला जा रहा था और तब भी हम सब खामोश थे. मगर साथियों, ऐसा कब तक? साथियों, जिस विषय पे मैं बात कर रहा हूं, यह केवल चर्चा का विषय नहीं है, यह एक लड़ाई है. और यह लड़ाई, मेरी आप सबसे विनती है कि आप इस लड़ाई को किसी धर्म, समाज, संप्रदाय या जाति या लिंग विशेष के खिलाफ ना समझें. यह लड़ाई मूल अधिकारों की लड़ाई है, स्वाभिमान की लड़ाई है, अस्तित्व की लड़ाई है, असमानता के खिलाफ लड़ाई है, रूढ़िवादी सोच के खिलाफ लड़ाई है, धर्म और समाज के ठेकेदारों के खिलाफ लड़ाई है, मेरे और आपके इस देश की संस्कृति और प्रगति के लिए लड़ाई है. साथियों, मैं उस प्रगति की बात कर रहा हूं जिसके विषय में हमारे देश के संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने यह कहा था
कि अगर किसी समाज की प्रगति का हिसाब लगाना चाहते हो तो यह जान लो कि उस समाज में महिलाओं की क्या स्थिति है। मैं उस संस्कृति की बात कर रहा हूं जहां औरतों को पूजा जाता है, जहां उसे घर की लक्ष्मी माना जाता है, जहां एक औरत सिंहासन पे बैठ सकती है और जहां एक औरत के स्वाभिमान की रक्षा के लिए युद्ध किए जाते हैं, चाहे वो माता सीता हो, द्रौपदी हो या रानी पद्मावती। और जिस भूमि पे हम सब एकत्रित हुए हैं साथियों, यहां का इतिहास और यहां की संस्कृति भी हमें यही सीख देती है कि जिस समय छत्रपति शिवाजी महाराज को यह ज्ञान हुआ कि उनके सैनिकों ने गलती से एक महिला को बंदी बना लिया है, तो उन्होंने उसी समय यह आदेश दिया कि उस महिला को सम्मानपूर्वक वापस भेजा जाए। और यही नहीं, इससे भी बढ़कर उन्होंने उस महिला को मां का दर्जा दिया। साथियों, इसी संस्कृति और इतिहास को ध्यान में रखकर बाबा साहब अंबेडकर ने हमारे संविधान की रचना की थी और हम सब पुरुष और महिलाओं को एक समान अधिकार दिए थे। मगर यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ राजनेता और समाज और धर्म के ठेकेदार यह समझते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो लोग धर्म के नाम पर अपनी दुकान चला रहे हैं और हम सब खामोश हैं। मगर साथियों, 22 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया और उसमें ट्रिपल तलाक जैसी कुरीति को असंवैधानिक घोषित कर दिया, साथियों यह एक नया अध्याय है। साथियों, अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि समय आ गया है कि हम रूढ़िवादी सोच, तुष्टीकरण की राजनीति और धर्म की राजनीति करने वाले लोगों को परे रखें और उनसे यह सवाल करें कि उन्होंने इस मुद्दे पे ट्रिपल तलाक पे अपनी क्या राय दी है। अगला जब चुनाव आएगा, मेरा आप सबसे विनती है कि आप यह तय कर लें कि राजनीति जो हो वो धर्म निरपेक्ष हो और सिर्फ कर्म की राजनीति हो। और अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिस घर में औरतों का सम्मान ना हो वो घर किसी शमशान से कम नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you very much, Mr. Pulkit, for your views. I request Shri Rahul Karat to kindly congratulate Mr. Pulkit and felicitate him. I now request our next student speaker who comes from Maharaja Sayajirao University, Gujarat, Mr. Ashish Kotaria. क्यों बनाते हैं हम ऐसे रिश्ते जो पल दो पल में टूट जाते हैं? क्यों बनाते हैं हम ऐसे रिश्ते जो पल दो पल में टूट जाते हैं? वादा तो करते हैं ता उम्र साथ निभाने का, लेकिन हल्की सी आंधी में बिखर जाते हैं। भारतीय छात्र संसद की समस्त मेधावी जनता को मेरा प्रणाम एवं नमन। यहां उपस्थित सभी महानुभावों एवं अतिथियों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं। तलाक तलाक तलाक, ये 3 शब्द बोलने में तो बहुत आसान है, लेकिन यही 3 शब्द उन महिलाएं एवं उनके बच्चों के भविष्य के ऊपर प्रश्न खड़ा कर देती थी। आजादी के 70 साल के बाद भी हमारे समाज में कुछ कुप्रथा ऐसी है जो महिलाओं को आगे बढ़ने से रोक रही थी। इन्हीं रुकावटों के कारण महिलाओं को सम्मानजनक जीवन जीने के अधिकारों से वंचित होना पड़ा था। 3 तलाक की प्रथा केवल मुस्लिम महिलाओं की नहीं, अभी तो हमारे देश की सभी महिलाओं की समस्याएं है। आखिरकार लोकतंत्र की जीत हुई। महिलाओं को प्रताड़ित करने वाली 3 तलाक जैसी प्रथा का सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उन्मूलन कर दिया गया। फिर एक बार सर्वोच्च न्यायालय ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की है। फिर एक बार हम कह सकते हैं कि प्राचीन वैदिक काल की तरह पितृसत्तात्मकता के सामने मातृसत्तात्मकता की जीत हुई है। मैं नमन करता हूं उन महिलाओं को जिन्होंने उन कुप्रथाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी एवं महिलाओं को न्याय दिलाया। आखिरकार सन 1985 में शाह बानो के द्वारा लड़ी गई लड़ाई शायरा बानो जी ने जीती। 3 तलाक का तो उन्मूलन कर दिया गया, लेकिन बलात्कार को सही ठहराने वाली निकाह हलाला एवं एक अधिक पत्नियां रखने वाली बहु विवाह जैसी प्रथाओं का उन्मूलन करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये प्रथाएं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 एवं 25 का उल्लंघन करती है। हम कोई भी धर्म का निजी संविधान देश के संविधान से परे नहीं है। मेरा प्रश्न है उन लोगों से जो कहते हैं कि 3 तलाक की प्रथा वैध है, मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता के ऊपर न्यायपालिका विचार नहीं कर सकती, ये उनकी परंपराओं के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। मैं उनके उत्तर के रूप में यही कहना चाहता हूं कि 3 तलाक की प्रथा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंतर्गत, शरीयत कानून के अंतर्गत है, जो कि एक मानव निर्मित संस्था है, इसलिए उसमें बदलाव संभव है। स्वयं मोहम्मद पैगंबर साहब कहते थे कि अल्लाह का सबसे नापसंदीदा कार्य 3 तलाक है, तो किस प्रकार से यह वैध हो सकती है, संवैधानिक हो सकती है? इसी अवसर पर मुझे बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर के शब्द याद आ रहे हैं। वो कहते हैं कि यदि इन समस्याओं का निवारण लाना है तो धार्मिक व भाषाई सहिष्णुता को प्रोत्साहन एवं नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू कीजिए, क्योंकि धर्म आदमी के लिए है, आदमी धर्म के लिए नहीं। तो आइए इस भारतीय छात्र संसद के परिषद में हम सभी छात्र मिलकर संकल्प ले कि जब तक समाज में चल रही इन कुप्रथाओं का उन्मूलन नहीं कर दिया जाता,
तब तक हम इनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और महिलाओं को न्याय दिलाएंगे। तभी तो हम कह पाएंगे कि जय भीम का नारा है, भारत देश हमारा है। जय हिंद, जय भारत, नारी शक्ति जिंदाबाद। Thank you very much, Mr. Ashish. Thank you very much for your views. I request Shri Rahul Kara to felicitate and congratulate Mr. Ashish for his views. And next, I would like to invite our last speaker of this session, who comes from Karanjlad, Maharashtra, Roshan Latif Sheikh. Please welcome her with a big round of applause. Roshan Latif Sheikh from Karanjlad, Maharashtra. भारत के युवा छात्राओं को मेरा नमस्कार। उस रात मैं गहरी नींद में सो रही थी, मेरे कानों पे शब्द पड़े, उससे मैं घबरा गई। वो शब्द थे तलाक, तलाक, तलाक। पहला तलाक सुनते ही मुझे बचपन याद आ गया, दूसरा तलाक सुनते ही मुझे जवानी याद आ गई और तीसरा तलाक सुनते ही मुझे बुढ़ापा याद आ गया। तीन तलाक क्या है? तीन तलाक मुसलमान समाज में वो जरिया है जिनमें मुस्लिम आदमी अपनी बच्चे की जिम्मेदारी कभी नहीं लेता और अपने बीवी को तलाक कह के किसी भी क्षण छोड़ सकता है। मैं कहूंगी, छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। द्यूत बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंदा न आएंगे। क्या होगा हम औरतों का? कब तक हम हाथों में मेहंदी लगाकर बैठेंगे? भारत में कई शकुनी बैठे हैं जो हमारा इस्तेमाल खिलौनों की तरह करते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, तीन तलाक से होने वाली परेशानी क्या होती है? तीन तलाक इन दिनों फोन, टेक्स्ट, मैसेज, ईमेल आदि के जरिए किए जाने लगा है। तीन तलाक हो जाने के बाद आदमी अपने बच्चे की जिम्मेदारी, मुख्यतः अपनी बेटी की जिम्मेदारी कभी नहीं लेता। मेरे भाइयों और बहनों, तीन तलाक से होने वाली परेशानी ये होती है, मैं मुसलमान समाज से होकर भी मेरी बचपन से जो पढ़ाई की तालीम ली गई है वो सभी मराठी स्कूलों में से ली गई है। तीन तलाक पर होने वाली परेशानी ये होती है, जिनमें शाहबानो का केस था तीन तलाक पर। उन्होंने उच्चतम न्यायालय में अर्जी लगाई थी, लेकिन तीन तलाक को गलत बताया था। मैं जहां तक जानती हूं कि तीन तलाक मुसलमान समाज में गैर इस्लामी है। कुछ लोग तलाक के बाद मुसलमान औरतों को हासिल होने वाली मेहर की रकम का हवाला देकर कहते हैं कि औरत अपनी बाकी की जिंदगी का इंतजाम खुद कर सकती है, जबकि इतना जानना जरूरी है कि निकाह लड़का और लड़की दोनों की रजामंदी से होता है, तो तलाक का अधिकार सिर्फ पुरुषों को ही क्यों दिया जाता है? यह भी जानना होगा कि निकाह जब दोनों परिवारों की उपस्थिति में होता है तो तलाक एकांत में क्यों? क्या तलाक देने का सिर्फ यही एक तरीका है? जवाब है नहीं। दरअसल तीन तलाक, मैं इतना ही कहूंगी, मुखे सांगे ब्रह्मज्ञान, जन लोकांची कापतो मान, ज्ञान सांगतो जनाशी, अंतरी आशा बहु जनांची, तुका मने तोची वेळा, त्याची हानून थोबाड फोडा। धन्यवाद। इतना कह के मैं मेरे भाषा को विराम दूंगी। जय हिंद, जय भारत। रोशन, आपने बिल्कुल ठीक कहा और जोरदार तालियां एक बार फिर से रोशन के लिए। रोशन लतीफ शेख। जब तक महिलाओं में इस प्रकार की आवाज रहेगी, कोई उस आवाज को दबा नहीं पाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और एक बार जोरदार तालियां रोशन के लिए। भारतीय छात्र संसद का ये मंच ऐसी ही आवाजों को सुनने का मौका हम सबको देता है और ऐसी